Hello, good evening. Good evening, sir. Okay, okay. So today we'll be starting with time series analysis. All good. So basically, there are in time series. Time series is a very important. Is a very important concept. So something which is based upon, and like you can say, there are two kinds of data. One is cross-sectional data. One is cross-sectional data. Another is time series data. Give me 1 second. So okay, so one is cross-sectional data, and other is time series data. A data which is taken, a data which is recorded uh, at same time, okay, is your at same time is your cross-sectional data. Like any observation, any reading for multiple students, it's a cross-sectional data. And any data which is taken regularly at different time periods at different times, it is called time series data. Like you have your stock market data. So stock market data for data for a particular stock. You understand that it is taken. You can say the closing price of a share. Monday, when it was at what was the share cost at which it closed on Monday? At what amount the share was trading on Tuesday? Like at what amount it closed on a particular day? Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. So maybe 1 January, 1st January 2020, 2nd January, 3rd January, and it will be recorded for 5 days because market works for 5 days a week, except for holidays and all. तो ये जो डेटा आएगा वो डेटा पॉइंट्स आपको ऐसे मिलेंगे, ऊपर नीचे जैसे भी जाएंगे समय के साथ. And when you will join all these points, you will get a graph which is a time series chart or time series data. Okay.
I hope we all are connected now. So hello, yeah. So I hope you all can listen to me now. So I'll again start from here. So any data which varies with time is your time series data. Now on x-axis is your time axis. Your time axis may be dates, 1st January something, or maybe if it starts from quarter wise, so 1st April something, 2nd April something. So it must be dates. It may be dates, or it may be uh, quarterly data. So it may be first quarter of 2018, second second quarter of 2018 likewise, third quarter, fourth quarter likewise. Okay, and it may be weekly, first week of 2019, second week, third week. It may be for restaurants and all. It may be weekly, hourly data, like how many people came at how many people were in the restaurant at 9 a.m. How many people were in the restaurant at 10 a.m. at 11 a.m. at 12 a.m. Because restaurants might be interested in how my how people come into my restaurant on an hourly basis, so that they can plan their inventory, and they can plan their manpower accordingly. So this data, and this is mostly your variable y, that the value of that whatever we are handling, uh, value of that variable at particular time period. Okay, so there are four types of variations that we can see, or trends. One is long term trend. Long term trend, that is the trends that we can see over multiple periods of multiple years, that we are able to see at multiple years, at many years of time, like you can say debt cycles that work in economy. They are they go for like 8 to 10 years long. And inflation cycles, debt cycles, these are cycles. Such cycles or such trends occur for more than a few years. Then we have cyclical variations, like we are able to see them in cycles. Seasonal variation. So seasonal variation may also mean that some data, some variable is varying with our four seasons. And also seasonal could be like there could be a weekly seasonality. So season may not only refer to our four seasons, it may also refer to other time periods. Random variation, that means these are not repeatable variations in data. These are not repeatable variations, and these occur due to a particular cause, and which may or may not be repeated. So there is no particular cyclical, seasonal, or long-term trend in random variation. So what is long-term trend? A trend is a long-term, relatively smooth pattern or direction exhibited by a series. So a trend is a long-term, relatively smooth pattern or direction exhibited by a series. Okay. Uh, there is that is there. Okay. Huh. Its duration is more than 1 year. So long-term trends occur for more than 1 year. So, and as I told you, debt cycle, DEBT, debt cycle in economics, and recession cycles, depression cycles, and all those things. These are mostly long-term. These display long-term trends. What is cyclical variation? It is a wave-like pattern describing a long-term trend that is generally apparent
over a number of years, resulting in a cyclical effect. By definition, it has a duration of more than 1 year. तो साइक्लिकल इफेक्ट में भी क्या होता है कि देर आर साइकिल्स. अब वो साइकिल्स आते हैं कि हर 12-15 साल बाद वो चीज़ रिपीट होती है, हर 20-25 साल बाद वो चीज़ रिपीट होती है, हर हर 2-3 साल बाद वो चीज़ रिपीट होती है. तो फाइनेंशियल और इकोनॉमिक्स में बहुत सारे साइकिल्स देखने को मिलते हैं. इसी तरीके से आपको क्लाइमेटिक कंडीशंस में भी ऐसा हो सकता है कि अगर देखने को मिले कि हर 5-6 साल पर पानी इतना बरसता है, या हर 8-10 साल पर एक बार इतनी गर्मी होती है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. These are cyclical variations. Seasonal variations. What are seasonal variations? So seasonal variations refers to cycles that occur over short repetitive calendar periods. That occur over short repetitive calendar periods. Uh, and by definition have a duration of less than 1 year. So it refers to cycles that occur over short repetitive calendar periods and by definition have a duration of less than 1 year. एक साल से कम के होते हैं seasonal variation. The term seasonal variation may refer to the 4 traditional seasons or to systematic patterns that occur during a month or week or even a day. तो सीजनल मतलब दिन के हिसाब से भी हो सकता है, 4 सीजन्स के भी हिसाब से हो सकता है, यानी वो हर सीजन के हिसाब से कोई डेटा जो है वो वेरिएबल जो है वो वेरी कर रहा है. डिमांड फॉर रेस्टोरेंट्स फीचर सीजनल वेरिएशन थ्रू आउट द डे. डिमांड फॉर रेस्टोरेंट्स फीचर सीजनल वेरिएशन थ्रू आउट द डे. कैसे? क्योंकि अभी इंडिया में तो कम कल्चर है ब्रेकफास्ट का बाहर जाने के लिए, लेकिन हम लोग जैसे फॉरेन कंट्रीज में देखते हैं कि वहाँ ब्रेकफास्ट का बहुत अच्छा कल्चर है, तो बाहर जाके वो जो है ब्रेकफास्ट भी करते हैं. हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ लंच भी उतना नहीं होता. हमारे यहाँ क्या है, हमारे डिनर ज़्यादा होता है बाहर रेस्टोरेंट्स में, होटल्स में जब हम जाते हैं. तो डिमांड यहाँ पे इंडियन सिनेरियो में हम देखेंगे कि वहाँ पर डिमांड कैसे बढ़ती है, सीजनल है. सुबह बहुत कम होगी, दोपहर में कुछ ज़्यादा होगी. लखनऊ में तो दोपहर का बहुत ही कम है मैं देखता हूँ, लेकिन पुणे में मैं देखता हूँ कि पुणे में मैंने देखा कि वहाँ पर जो है लंच का भी जो है काफ़ी वो है. और ख़ास तौर से फ्राइडे को जो है वो लंच के लिए लोग ज़्यादा दिन में बाहर जाते हैं, जो लोग काम पे बाहर जाते हैं. तो मतलब ये है कि रेस्टोरेंट्स की जो डिमांड है वो यानी कि कितनी भीड़ आ रही है उनके यहाँ, वो सीजनल है. थ्रू आउट द डे में भी सीजन्स होते हैं, सुबह कम आएंगे, दोपहर में ज़्यादा आएंगे, रात में बहुत ज़्यादा आएंगे, तो डे में ही वो वैरी कर रहा है. तो दिस इज सीजनल वेरिएशन. हाँ ना, लास्ट रैंडम वेरिएशन. तो रैंडम वेरिएशन में जाने के पहले मैं कहना चाहूँगा कि हमारा पर्पज ये होता है हमेशा डेटा में कि ढूंढना, किसी टाइम सीरीज में ये ढूंढना कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड क्या है. लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखना चाहते हैं हम डेटा में. और साइक्लिकल वेरिएशन में हम देखना चाहते हैं कि क्या साइकिल्स चल रहे हैं, क्या पैटर्न्स बार बार रिपीट हो रहे हैं. सीजनल वेरिएशन अगर दिख रहा है तो हम ये देखना चाहेंगे कि किस सीजनलिटी और कैसे वो बार बार वो चीज़ फ्लक्चुएट कर रही है, सीजन्स के हिसाब से कैसे हमारा डेटा वेरी कर रहा है. नाउ बिकॉज वाई वी आर इंटरेस्टेड कि सीजनल में और साइक्लिकल में, क्योंकि वो फिर रिपीट करेगा. तो अगर हमें पता चल जाए कि हाँ इस डेटा में, इस टाइम सीरीज में वो कंपोनेंट है, सीजनल कंपोनेंट है, साइक्लिकल कंपोनेंट है, या लीनियर कंपोनेंट है लॉन्ग टर्म में, तो हमें ये पता चल सकता है यार अच्छा ठीक है ये फिर से होने वाला है, या ये इतने इतने पीरियड के बाद होने वाला है. तो हम अपनी प्लानिंग और प्रिपरेशन उसके हिसाब से कर सकते हैं. अगेन व्हाट इज रैंडम वेरिएशन. रैंडम वेरिएशन ऐसे होते हैं जो रैंडम किसी लोकल फेनोमेना की वजह से होते हैं और जो रिपीट नहीं करते. लेकिन वो अगर आपके डेटा में है, आपके टाइम सीरीज में ऐसा रैंडम वेरिएशन है, तो उससे जो है सीजनल कंपोनेंट और साइक्लिकल कंपोनेंट हाइड हो जाते हैं. ठीक है. और इसलिए जो है हमको कुछ टेक्निक होनी चाहिए हमारे पास, जिससे कि हम अपने डेटा में से वो रैंडम वेरिएशन निकाल के कोशिश करें कि रैंडम वेरिएशन हटाने की कोशिश करें अपने टाइम सीरीज में से, ताकि हमको सीजनल कंपोनेंट और साइक्लिकल कंपोनेंट जो है हम उसमें से देख सकें. तो random variation is caused by irregular and unpredictable changes in a time series that are not caused by any other components. तो random variation जो है is caused by regular and unpredictable changes in a time series. तो irregular है और unpredictable है, यानी रिपीट नहीं होगा, इन टाइम सीरीज दैट आर नॉट कॉज्ड बाय एनी अदर कंपोनेंट्स, जो कि किसी सीजनल या साइक्लिकल की वजह से नहीं हो रहा है.
तो इट टेंड्स टू मास्क द एग्जिस्टेंस ऑफ अदर मोर प्रिडिक्टेबल कंपोनेंट्स। तो उसकी वजह से वो रैंडम कंपोनेंट्स की वजह से वो दूसरे प्रिडिक्टेबल कंपोनेंट्स को वो हाइड करता है। जैसे कि एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड है और ये लीनियर है, यूएस पॉपुलेशन का 1952 से 2009 तक का। तो 1952 से मिलियंस में, ये हम देख रहे हैं कि 1952 से लेके 2009 तक लगातार ये जो है एक बड़ा एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड है, ये लगातार अपवर्डिश है। तो हम ये भी बता सकते हैं कि बीच में कि लगभग ये ऐसे ही कुछ दिन तक और बढ़ेगा। ठीक है, जब तक कि वो कुछ खास मेजर्स नहीं लेंगे तो वो बढ़ता रहेगा। तो बड़ा अच्छा सा एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड हमको इसमें दिख रहा है। तो विच इज लीनियर हेयर, लीनियर लीनियर लॉन्ग टर्म ट्रेंड। लेकिन जरूरी नहीं है कि वो ट्रेंड जो है वो लीनियर ही हो। ठीक है, वो नॉन लीनियर भी हो सकता है। जैसे कि यूएस बियर कंजम्पशन पर कैपिटा 1970 से 2004 तक का डेटा है ये। यूएस बियर कंजम्पशन हम देख रहे हैं कि 1970 से 1980 तक ये बढ़ा और उसके बाद फिर धीरे धीरे ये कम आने लगा। यानी इस एरिया में लोग जो है बहुत ही खुश मिजाज लोग थे इस टाइम पर। और काफ़ी अच्छा बियर का कंजम्पशन पीक पे हुआ। लेकिन उसके बाद जो है यूएस में जैसे जैसे वट एवर दे थॉट, जो भी उनका एज अ सोसाइटी हमें देखने को मिल रहा है कि उसके बाद वो फिर नीचे जाने लगा। तो दिस इज एग्जैक्टली not a linear trend. It is a long term trend, but you can say this is somewhat नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन काइंड ऑफ कुछ उस तरीके का अजीब सा है कि जो एक पहले ऊपर गया फिर धीरे धीरे नीचे आके फिर फ्लैट होने लगा। फिर ये कांस्टेंट की तरफ हो रहा है कि हाँ अब लगभग लोग इतना ही चल रहा है, लोगों का इतना ही लोग उसको कंज्यूम कर रहे हैं, विच इज नॉन लीनियर बट लॉन्ग टर्म। सीजनल ट्रेंड। अब सीजनल ट्रेंड है, ट्रैफिक वॉल्यूम बिलियंस ऑफ माइल्स, ये मंथ्स है। जनवरी से लेकर के जैसे 12 तक जनवरी तक आया, फिर उसके बाद से फिर चेंज हो गया, 12 13 मतलब फिर जनवरी आ गया। तो आप देखो जब बहुत जाड़ा पड़ता है, जैसे जैसे वहाँ दिसंबर नवंबर दिसंबर जनवरी बहुत जाड़ा होता है तो ट्रैफिक एकदम कम हो जाता है। फिर जैसे जैसे गर्मी की तरफ बढ़ते हो, मार्च अप्रैल की तरफ ट्रैफिक बढ़ने लगता है और जुलाई सबसे अच्छा मौसम होता है वहाँ यूएस में। तो वहाँ पर ये ट्रैफिक सबसे ज़्यादा है। फिर जैसे जैसे जाड़ा बढ़ की तरफ बढ़ने लगा ये थोड़ा कम होने लगता है। फिर एकदम जब दिसंबर जनवरी के आसपास एकदम डाउन हो जाता है। तो ये देखो आप इस तरीके से ट्रैफिक के साइकिल्स रिपीट हो रहा है। तो ये सीजनल ट्रेंड आपको दिखा रहा है। ये सीजनल है, सीजन्स की वजह से आपका ट्रैफिक का जो है काफ़ी प्रोडिक्टेबल है। इसके हिसाब से आप अपना पेट्रोल पंप्स और इन सबको प्रॉपर मैनेज कर सकते हो। ट्रैफिक बढ़ रहा है अगर तो एक्सीडेंट का भी ज़्यादा थोड़ा माहौल बनेगा, थोड़ा डॉक्टर भी ज़्यादा चाहिए होंगे, या आप अगर ट्रैफिक का टाइम बढ़ रहा है तो ज़्यादा कार सेल हो सकती है। सो मेनी थिंग्स यू कैन प्लान एंड प्रिपेयर फॉर दिस। ओके, तो आज के लिए हम लोग इतना रोकेंगे एंड go through it. Yeah, so there are four components: long term, cyclical, seasonal and random। ठीक है, लॉन्ग टर्म क्या होता है, वो एक साल से ज़्यादा के होते हैं। साइक्लिकल साइकिल्स में रिपीट करते हैं, एक साल से ज़्यादा के ये भी होते हैं। सीजनल जो सीजन के हिसाब से होते हैं, सीजन हमारे 4 सीजन भी हो सकते हैं या विद इन अ डे भी हो सकते हैं। रैंडम वेरिएशन जो कि इरेगुलर और अनप्रिडिक्टेबल है। एक एग्जांपल लीनियर का लॉन्ग टर्म का, एक एग्जांपल नॉन लीनियर का लॉन्ग टर्म का। फिर सीजनल ट्रेंड इस तरीके से आ रहा है, ये सीजनल आ रहा है। ठीक है, तो इसकी थ्योरी जो है, आप लोग थोड़ा सा आप इसके बारे में टाइम सीरीज डेटा क्या होता है, एक्सेल में बड़े अच्छे से बनता है ये। ठीक है, उसको आप थोड़ा सा पढ़ें और देखें। और कल की क्लास में हम देखेंगे कि रैंडम वेरिएशन क्या होते हैं और कैसे जो है हमारा एक दो दो मेथड्स होते हैं जिनके थ्रू हम किसी डेटा से हम रैंडम वेरिएशन जो है निकाल सकते हैं, रैंडम वेरिएशन हटा सकते हैं। और रैंडम वेरिएशन क्यों हटाना हम चाहते हैं किसी टाइम सीरीज में से, क्योंकि उसके अंदर उसके बाद जो छुपा हुआ सीजनल या साइक्लिकल कंपोनेंट्स है हम वो देख पाएं। इसलिए हम रैंडम वेरिएशन को हटाना चाहते हैं। उसके दो मैथमेटिकल टेक्निक्स हैं जिनका इम्प्लीमेंटेशन एक्सेल में अवेलेबल है, वो मैं आपको कल प्रैक्टिकल करके दिखाया जाएगा। तो आज आप लोग ये पूरा जो है रिवाइज करके रखें आज से कल। इतने में कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं।
Okay, I guess everything is all right. You mean the cyclical trend? Okay. So cyclical variation, it is a wave-like pattern describing a long-term trend that is generally apparent over a number of years, resulting in a cyclical effect. Cycles चलते हैं इकोनॉमिक्स में, डेट साइकिल्स होता है कि इकोनॉमिक्स में क्या होता है, जैसे ऐसे समझो कि कोई कंट्री है, वो एक कंट्री है, वो पहले लोन लिए जा रही है और उसके लोग जो है कंजम्पशन, लोन लिए जा रहे हैं और कंजम्पशन बढ़ता जा रहा है लोन लेकर के। फिर एक टाइम आता है कि जब वो चुकाने का समय आएगा भैया कि अब चुकाओ, तो जैसे जैसे चुकाना शुरू करोगे तो फिर वैसे वैसे तुम्हारा कंजम्पशन कम होता जाएगा और इकोनॉमी स्लो होती जाएगी। तो ऐसा हर 7-8 साल पे लगभग रिपीट होता रहता है। तो इस तरीके के जो ऐसे मूवमेंट्स हैं वो साइक्लिकल वेरिएशन कहलाते हैं। ये कहीं भी हो सकता है, या कोई तुम समझ लो ज्वालामुखी है, वो हर 7-8 साल पर पे जो है वो इजेक्ट करता है, ठीक है। इस तरीके से, या टेम्परेचर के साइकिल्स हो गए कि हर 7-8 साल में टेम्परेचर इतना जाता है और फिर थोड़ा सा कम होता है, फिर हर 7-8 साल में इतना जाता है, या पानी पानी बरसने का है। इस तरीके से ये सब साइक्लिकल वेरिएशन होते हैं। या गुड। एक बार थोड़ा सा गूगल करके थोड़ा थोड़ा पढ़ना, थोड़ा ग्राफ चार्ट देखना, अच्छा इसका क्या एग्जांपल आ रहा है, अच्छा इसका क्या एग्जांपल आ रहा है। तो कल जब हम लोग जो है रैंडम रैंडम कंपोनेंट को हटाने का प्रैक्टिकल करेंगे, yes, for a shorter time you can say, yeah, mostly less than a year. Yes, yes, yes. चलो कूल है। ठीक है, कल का कुछ टाइम चेंज होगा तो मैं मॉर्निंग में बता दूंगा। वैसे तो अभी के लिए यही 8 बजे ही रहेगा। बाय बाय बाय।